Hello, friends, and welcome to today's episode of Learning with Lalit. Thank you for joining us. Friends, today's topic is related to the subject of health and fitness. The topic which we are going to discuss today is not limited to particular age or a geography. Rather, it's relevant to people across age and across geographies. Yes, friends, today we are going to talk about the concept of fat loss. Now, unlike weight loss, where the awareness and the knowledge about the subject of weight loss is pretty much there, the concept of fat loss is relatively unknown, and there are still many people who are not much clear but what is the difference between the two. So in today's episode, we are going to address many such questions which you also must be having in your mind, and we are going to cover the points like what is the difference between weight loss and fat loss, how much time does it take to reduce or to shed the excess fat, what is the ideal body fat composition, how can you measure how much body fat is there in your case, how can you maintain having gone through a fat loss program, and many other such questions. To answer these queries, we have with us on our show today Mr. Sujay Roy. Mr. Sujay is a coach, a fitness trainer, and a professional bodybuilder. He has been testimony to many such transformation, and he practices what he preaches. And it is for this reason that he remains and maintains his fitness level around the year despite his hectic schedule. So without taking much of your time, please join me and let's welcome Mr. Sujay on the show. Hi Sujay and welcome to our episode of Learning with Lalit. आपका टाइम निकालने के लिए और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई नो संडे का दिन है, आपके लिए बिजी रहता है, आपके अपने शेड्यूल्स रहते हैं, बट आपने टाइम निकाला और आए. थैंक यू वेरी मच. तो सुजय, सेशन का स्टार्ट करने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है. Hello, sir, and thank you. Thank you for inviting me, sir. Sir, starting from my name, myself, Sujay Roy. By educational qualification, I'm a civil engineer. Besides that, मैं एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट हूँ और उसके साथ फिटनेस ट्रेनर एंड कोच. I have represented state, national, and international championships, and on gold and bronze respectively. और उसके साथ अभी भी मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, जॉब चल रहा है. उसके साथ मैं जो भी मेरे क्लाइंट चाहते हैं फॉर देयर फिटनेस गोल, अचीविंग दैट पर्पस. ग्रेट. सो सुजय, आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में अपना जो आपका पैशन है फिटनेस के लिए उसको फॉलो भी कर रहे हो, एथलीट हो, आपने काफी कॉम्पिटिशंस भी जीते हैं जो राइटली सेड. सो गुड टू सी कि आप अपना प्रोफेशन भी कर रहे हो और अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो. बहुत कम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलता है. एंड हैविंग नोन यू फॉर लास्ट 5-6 years, मैं जानता हूँ कि आप कितना सीरियस हैं फिटनेस के लिए. एंड दैट इज द रीजन कि जब हमने ये टॉपिक के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी काफी लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म की है. सो ग्रेट सुजय. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सुजय, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि व्हेन पीपल अप्रोच यू, तो सबसे ज्यादा कॉमन कौन से हेल्थ इश्यूज के लिए वो आपके पास आते हैं? Sir, the most common health issue for which people approach me are like weight loss, fat loss, and weight gain. Okay. Right. So see, weight loss, weight gain तो बहुत लोगों को पता है, but fat loss के लिए थोड़ा सा awareness I think अभी भी कम है, unless you are associated with the fitness industry. So थोड़ा सा हमको बताओगे how is weight loss different from fat loss? Actually, sir, weight loss is a decrease in your overall body weight. It includes your body fat, your muscle, and the water in your body. और जब हम लोग वेट मशीन या वेट वेइंग स्केल पर हम लोग खड़े होते हैं, वो क्या दिखाता है कि आपने इतना ग्राम्स, इतना पाउंड या इतना केजी रिड्यूस किया है. वो जो है वो वेट आपने रिड्यूस किया है, लेकिन फैट नहीं. वो फैट मेजरमेंट नहीं देते. और फैट लॉस क्या है? Fat loss is reduction in body fat, and I think, as per my view, fat loss is much better than weight loss. Okay, so just for the benefit of our viewers, when we talk about body weight के अंदर there are 3 components. One is water weight, another is muscle weight, and third is your fat. What we are talking about. And जब हम लोग weight loss journey अपनी start करते हैं,
तो हमारा सारा फैट का ही लॉस नहीं होता है, वी लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी और मसल भी लूज करते हैं। तो मैनी टाइम्स जब हम वेट लॉस जर्नी में जाते हैं और जो हमको वो स्केल पे खड़े होकर देखते हैं हमारा वेट कम हो रहा है, तो वो नॉट नेसेसरली अनहेल्दी वेट रिडक्शन, वो हेल्दी फैट भी हमारा मसल भी लूज हो जाता है। एंड दैट इज आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल। और उसमें फैट लॉस में वी आर फोकसिंग only on reducing the fat percentage from our body. Fat percentage of body. तो इसीलिए fat less loss is better than weight loss. That's I understand. चलो ग्रेट, तो इतना तो समझ में आ गया सुजय। अभी हमको ये बताओ, ये फैट आइडियल बॉडी का फैट कंपोजिशन कितना होना चाहिए एक नॉर्मल के लिए? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन एथलीट या जो प्रोफेशनल्स, नॉर्मल पर्सन के लिए। सर देयर इज अ स्टैंडर्ड। एक्चुअली हम लोग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं उसी हिसाब से फॉर मेन इट वेरीज फ्रॉम 7 to 25% एंड फॉर वुमेन इट वेरीज फ्रॉम 16 to 33% डिपेंडिंग ऑन आवर एज। ओके, तो 7 से अगर 25% के बीच में है, सो देन देयर इज नो कॉज टू वरी, मतलब वो एक नॉर्मल। नो, it depends on your age. अच्छा, age group 20 to 29, then 30 to 39, then 60 plus. ओके, So उसके लिए हमको it is for हाँ, yeah, carry on. For men it depends on our age, or women it depends on our age, and for men it is 7 to 25%, and for women it is 16 to 33%, and it definitely depends on our age. ओके, राइट। सो अब इसमें ये बताओ कि हाउ कैन वन डिटरमाइन कि उसका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है? क्योंकि वेट तो आप वेइंग स्केल पे खड़े होकर निकाल लेते हो, एवरीबॉडी नोज इट, राइट। फैट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? Actually sir, there are 6 general ways to find our body fat percentage. ओके, तो वो 6 ways क्या है? फर्स्ट पार्ट है टेप मेजरमेंट, सेकंड कैलिपर्स और स्किन फोल्ड टेस्ट, उसके बाद है बॉडी फैट स्केल जो है तो उससे कर सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक वेट है उससे कर सकते हैं, एयर डिस्प्लेसमेंट प्लेथोग्राफी जो है उससे कर सकते हैं, या एमआरआई और सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जिम में जो एक्चुअली यूज करते हैं वो जनरली स्किन फोल्ड टेस्ट और कैलिपर टेस्ट जो है वही उससे डिटरमाइन करते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं कि 3 या 5 पॉइंट्स हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उधर से स्किन फोल्ड करके विद कैलिपर्स हम लोग उसको मेजरमेंट करके उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। बिसाइड दैट और एक उपाय है जो हम लोग घर बैठ के भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो उसमें क्या है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में अगर हम लोग चाहते हैं तो उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करके बीएमआई, देन बीएमआई से हम लोगों का जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं फॉर मेल एंड वुमेन। राइट। सो 2 जनरल वे समझ में आया हमको सुजय। वन इज आपका जो जिम में करते हैं वो आप फैट कैलिपर टेस्ट करते हैं, इसमें स्किन फोल्ड मेजरमेंट करके एट 3 और 4 और 5 प्लेसेस, देन आपका उसका एवरेज निकालते हैं। बट अगर घर में किसी को करना है, कोई नहीं जाता जिम, तो उसके लिए आप फॉर्मूला में उसका बीएमआई के थ्रू निकाल सकते हैं। So for our viewers, the formula I am displaying in the description box, और आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि this is the formula which has to be used. Great. So just for the benefit of viewers, BMI body mass index है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमें फैट परसेंटेज निकालने के लिए पहले बॉडी मास इंडेक्स निकालना है और उसके बाद फॉर्मूला में डाल देना है। तो सुजय जी ने जो अभी हमारा को फॉर्मूला बताया, डोंट गेट वरीड अबाउट इट, ये फॉर्मूला हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फॉर्मूले से सबसे पहला स्टेप है आप अपने बॉडी का फैट परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक बार वो फैट परसेंटेज निकाल लिया, देन जो फैट चार्ट है उसमें आप देख सकते हो कि आपका उस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपकी एज के अकॉर्डिंग यू आर नॉट फिटिंग इनटू दैट फैट परसेंटेज, दैट मींस कि आपको फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। राइट सुजय? दैट्स द व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। राइट, ग्रेट। सो एक बार हमने बॉडी फैट परसेंटेज अपना निकाल लिया, तो उसके बाद फैट लॉस प्रोसेस के अंदर कितने क्या स्टेप्स हैं और स्टेप बाय स्टेप जर्नी क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस फॉलो करना है, उसके लिए हम लोगों को जो चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन इन ईटिंग। व्हाटएवर फूड वी आर टेकिंग, वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड विथ प्रॉपर वर्कआउट प्लान।
Second point, get enough of protein as per your body weight. Reduce intake of carbs, avoid fast food or processed food, take plenty of water. Okay, so diet हो गया, workout हो गया, water हो गया, right? Okay. Right. Right. So I think हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे. हाँ, these all are the things कि हम लोगों को follow करना है. तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. उसके साथ ये प्रोसेस्ड फूड जो है वो एकदम ही हम लोगों को अवॉइड करना है. और कर्ब्स जो है, कर्ब्स रिड्यूस करना है. कर्ब्स को जीरो नहीं करना है, सिर्फ रिड्यूस करना है. ओके, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, बैलेंस डाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो कई जगह बोला जाता है कि आपको जीरो कार्ब्स लेना है. जीरो कार्ब्स की बात हम नहीं कर रहे हैं. एंड एज फार एज आई नो, इस डाइट प्रोग्राम में हम हेल्दी फैट्स भी लेते हैं. फैट्स भी हम लोग एकदम जीरो नहीं करते. द ओनली थिंग इज कि डाइट का कंपोजिशन हमको इस तरीके से करना है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स है, उसमें प्रोटीन आपका सबसे ज्यादा इंटेक होगा, फॉलोड बाय कार्ब्स एंड फैट्स, सो दैट वी हैव appropriate composition या percentage of macronutrients in our body. Right. So एक fat loss program के लिए average duration क्या रहता है, क्योंकि आपके पास काफी clients भी आते हैं, तो how does it हाँ. Actually it depends on your discipline, dedication, workout plan. Actually आप जितना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे, वर्कआउट प्लान अच्छे से फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा. फिर भी अगर हम लोग मोटा पकड़ लेते हैं, फिर भी इट मे वैरी फ्रॉम 1 month to 5 months and sometimes it takes more. Okay. 1 year and above. Okay. आई थिंक वो वेरी भी करेगा कि आपके पास एक्सेस फैट कितना है, आप कितना लूज करना चाहते हो, उस पर भी डिपेंड करता है ना. Right. Okay, Sujay, as far as weight loss, I know कि normally it is said कि अगर आप half kg से 1 kg पर week में lose करते हो, so that is a decent amount of weight loss which you are doing, right? तो उसमें fat loss के लिए कैसा रहता है कि कुछ ऐसा defined है कि weekly या monthly इतना percentage अगर आप reduce कर लेते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Fat loss actually depends on your metabolism rate. Okay. जो प्रोटीन आप ले रहे हैं, जितना HIIT आप ट्रेनिंग करेंगे, उसी हिसाब से आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मसल में जितना बढ़ता रहेगा, वो आपका फैट लॉस होता रहेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि विद इन अ वीक हमें 1 किलो या 500 ग्राम्स हम लोग अगर कर लिया है श्रेडिंग तो ये इनफ है. किसी के लिए ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है. सो फैट लॉस एज फार एज अंडरस्टैंड वो कस्टमाइज ज्यादा रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर एज, आपका मेटाबॉलिज्म रेट एंड देन यू गो. ओके, एंड ड्यूरेशन 1 to 5 आप बोल रहे हो. मैं बोलता हूँ कि अगर सिर्फ 5 से 6 महीना भी लगता है तो दैट्स अ गुड इनफ टाइम जिसके अंदर आप रिजल्ट ला सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर ईटिंग हैबिट्स एंड वर्कआउट सेशंस. राइट. तो अमंग द डाइट एंड वर्कआउट व्हिच प्लेज अ बेटर रोल? जी, किसका ज्यादा रोल है? एक्चुअली डाइट प्लेज अ बेटर रोल. Diet plays a bigger role. Actually, diet we depends on diet up to 70 to 80% and 20 to 30% on workout. Both are important, but diet is much more important. What you are taking. Agreed. See, the reason I was asking is for the benefit of our audience. Many a times ये होता है कि हम लोग फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं करते हैं बिकॉज वो जिम जाने की हमको सुस्ती आ जाती है या वी गेट लेजी. Now gym plays 20-30% role, as Sujay rightly said, क्योंकि workout sessions is that much, this is the amount which it contributes. अगर आप अपनी डाइट ही सही कर लो तो 70-80% तो वहीं से आता है. That's the main thing which you are doing. So even without going for an intensive workout session, you can have some results coming in which can motivate you. That's what the purpose is. Good. So Sujay, I know you have been training people. आपके अंडर में काफी लोग पहले fat loss programs गो थ्रू भी किए हैं, आपने कोचिंग भी की है, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज बताओगे जिसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कितना टाइम लगा, कितना फैट रिड्यूस किया, थोड़ा सा बताओ. Sure. Actually, there are many such success stories available under my guidance. Right. I would like to mention one here. Once a guy weighing 98 kilo came to my gym for training under me.
he was suffering from obesity since his childhood. He started training under my guidance and reduced 36 kilos within a 5 months journey. It was tough, but he जो हमने बोला कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस बंदे ने फॉलो किया प्रॉपर्ली with discipline, dedication, and proper scientific approach. It was tough one, but his dedication and mainly his hard work, along with the scientific approach, helps him a lot. Okay, that's great one. मतलब 5 महीने में आप 36 kgs बोल रहे हो, और वो भी ऐसे पर्सन की जो कि by birth ही obese है from his childhood. Right. So that's amazing. Right. Fantastic. So that comes brings me to another question कि as a coach आप क्या रोल प्ले करते हो, या आपको क्या क्या अपने क्लाइंट को ऑफरिंग देते हो while he is on a fat loss journey? Actually, as a coach, my main role is to guide my client through a proper and easy to adapt scientific approach, and to motivate them throughout the journey to achieve our goal. It's not an individual target. My client's target is my target. Right. तो वैसे हम लोग लेते हैं, लेकर हम लोग एक साथ चलते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो वीकनेस है उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, उसको अगर रेक्टिफाई करना है करके हम लोग कैसे उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, हम लोग वो कोशिश करके हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो 4 चीजें मुझे समझ में आई। पहला, आई एम श्योर कि आप उसका डाइट प्लान डिजाइन करते हो उसकी नीड के अकॉर्डिंग। दूसरा, उसका वर्कआउट प्लान करते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसे टाइमली मोटिवेशन देते हो, बिकॉज मोस्टली होता यही है कि पीपल गेट मोटिवेटेड फॉर सम टाइम, स्टार्ट करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं। एंड फोर्थ, यू आर सेइंग कि आप टेस्टिमोनियल देते हो, यू शो हिम कि ये पर्सन भी आपकी तरह था, ही स्टार्टेड देन ही कंप्लीटेड हिज जर्नी, तो वो रिजल्ट्स देख पाते हैं, तो विच मोटिवेट्स देम टू कीप ऑन गोइंग। So I think that is very important, because as everybody knows, 1 जनवरी को सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन हेल्थ को लेके ही होते हैं। सबसे ज्यादा जिम्स की मेंबरशिप जनवरी में होती है, और वो फरवरी मार्च आते आते खत्म हो जाती है। राइट, ग्रेट। सो राइटली सेड। अच्छा, इफ समवन इज गोइंग फॉर दिस फिटनेस जर्नी, फैट लॉस या वेट लॉस ऑन हिज ओन, और ही undergoes under a coach or a trainer, main difference क्या रहता है, since you would have seen both kind of people? Right. Actually, coach क्या करते हैं? Coach keep you on track and moving forward toward new levels of achievement, है ना? For many of us, having someone we answer to motivate us, it act. Actually, focus जो है वो focus ठीक रखने के लिए, motivation के लिए coach चाहिए, क्योंकि scientific approach चाहिए। तो अकेला कोई बंदा साइंटिफिक अप्रोच नहीं कर पाएगा। जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो पहले कर चुका है, वही आपको गाइड कर सकता है। और कोच आपका जो वीकनेस है, जो वीकनेस को आपको सुधारना है, वीकनेस यू नीड टू फिक्स, एंड दोस दैट आर बेस्ट लेफ्ट एज देयर, तो उसमें जो डिफरेंशिएट जो करना है, वो कोच आपको सिखाता है। राइट। सो जो मुझे समझ में आया इसमें कि एक तो है कि अपनी सेल्फ जर्नी पे जाओ, हिट एंड ट्रायल से करो, या कहीं से प्रोग्राम निकालो, यू फॉलो करो, तो उसमें एक तो ये होगा कि शायद रिजल्ट्स थोड़ा स्लो आएंगे, क्योंकि एक तो उसमें डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी का मैटर आ जाता है, और प्लस आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है। कोच के होने से उसने वो चीज करके देखी है ऑन हिमसेल्फ और अदर्स ऑल्सो, तो वो प्रूवन है। तो दैट इज वन। प्लस एक अकाउंटेबिलिटी है कि अगर आप बोलते हो कि आपको कल यही खाना है और फिर एक्सरसाइज के लिए आना है और नहीं करता, तो जवाब देना पड़ता है आपको अपने कोच को। बिल्कुल। सो दैट ब्रिंग्स इन मोर डिसिप्लिन। राइट। और ये कोच जो बना के देते हैं वो टेलर मेड होते हैं ना, कि जो भी डाइट है उनके लिए स्पेसिफिकली डाइट है, तो वही डाइट फॉलो करना है, तो इट विल ब्रिंग मच मोर बेटर रिजल्ट। Now the scientific proven way है, so that brings in more results and faster results, as I would say. Right. So suppose someone has achieved the desired fitness level, as you said कि one of your clients was able to lose 36 kgs in 5 months. So that was going through a structured program. Now to maintain that level, how should one go? He has to continue with the same program throughout his life. Yeah, there are how can one maintain? That's because that's a question which comes generally. No, right. Actually,
there are some basic rules. Exercise daily with a proper scientific workout plan. Eat clean. Keep track of your daily calorie intake or food intake. Have enough sleep. Stay focused and motivated. Actually ये जो है ये टोटल आपको हमेशा फॉलो करना है. Okay. तो ऐसा नहीं कि आप चीट डाइट नहीं ले सकते हैं, लेकिन it depends on your body fat percentage. You have to calculate your body fat percentage. Then you have to talk or discuss with your coach. तो अगर लगता है कोच को कि हाँ आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है उसी हिसाब से आप चीट कर सकते हैं, तो आप चीट ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग भी लेते हैं. बट द मेन पॉइंट इज दैट के एक्सरसाइज रेगुलरली करना है. वर्कआउट प्लान जो है वो प्रॉपर फॉलो करना है. जो भी खाना है क्लीन खाना है. कीप ट्रैक ऑफ योर कैलोरीज और फूड इंटेक्स पर डे. हैव एनफ स्लीप. स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड. तो सोचे हम ये ऐसा बोल सकते हैं क्या कि से अगर कोई एक पर्सन है जो फैट लॉस प्रोग्राम पे अभी गया फॉर 5 months 6 months, गोल अचीव कर लिया, उसके बाद उसको उतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करनी, बट एक जनरल रूटीन फॉलो करना है जिसमें वो क्लीन खाता है, प्रॉपर वर्कआउट करता है, सो दैट ही इज एबल टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. राइट. तो दैट वी कैन डू. सो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट रेजिमेंट बना के दे दिया, उसको थ्रू आउट लाइफ वही फॉलो करना है, बिकॉज दैट बिकॉज लाइफ बिकम्स बोरिंग. राइट. ओके, तो ठीक है. फॉर इनिशियली गेटिंग द रिजल्ट्स वी हैव टू वर्क हार्ड. थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट शेड्यूल हमको फॉलो करना है, बट वंस वी हैव अचीव्ड अवर डिजायर्ड गोल, मेंटेनेंस लेवल के लिए हमको जो कैलोरीज चाहिए, जो प्रोग्राम चाहिए, वी हैव टू फॉलो. हाँ, दैट डजंट मीन्स कि स्टार्ट ईटिंग जंक अगेन, तो फिर तो बैक टू स्क्वायर वन ही हो जाएंगे. राइट. ग्रेट यार. सो सुजय, फिटनेस मेंटेन करने के लिए कोई जेनरिक एडवाइस आप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? श्योर. एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर हमें प्रॉपर फिटनेस मेंटेन करना है तो हमें बहुत डिसिप्लिन्ड वे से चलना है, बट लाइफ को बोरिंग भी नहीं बनाना है. Get in enough calories for your body size and activity level. Make sure those calories are nutrient dense. वो आना चाहिए vegetables, meats, legumes और dairy products और whole grains. और कैलोरी जो इंटेक करना है हमें कैलकुलेट करके करना है. कैसे कि हम लोगों का बॉडी वेट जो है वो बॉडी वेट के ऊपर 10 to 12 टाइम्स हमें कैलोरी इंटेक करना है पर डे. ओके. और बॉडी वेट इन पाउंड्स और केजी, सॉरी टू कट यू, बॉडी वेट इन केजीज में जो बॉडी वेट है उसका हमको 10 to 12 टाइम्स तक. ओके. राइट. और ये एक्चुअली एकदम लोअर लेवल पे मैं बोल रहा हूँ. अगर थोड़ा हम लोग अगर फॉर 18 to 19 ईयर्स अगर बचेंगे, मैं ये जो राउंड मैंने बोला 12 to 18 से ऊपर जो रहेगा वो रहेगा अप टू 23 to 36 times of your body weight for age more than 18 plus. Okay. And try to get at least one gram of protein per kg of body weight. And you have to divide it evenly among 5 meals. Okay. Have to take enough calorie to maintain our activity level. Have to fill the rest of our calorie with fat. जैसे आप बोल रहे थे कि हाँ हम लोग फैट लेते हैं. हम लोग कौन सा फैट लेते हैं? हम लोग हेल्दी फैट जो है, जो एसेंशियल फैटी एसिड है, वो हम लोग इंटेक करते हैं. तो वो हमें चाहिए. और मेक श्योर यू एक्सरसाइज एवरी डे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होगा, जो मसल हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, मसल क्या करते हैं, मसल हेल्प करते हैं ताकि हम लोग फैट लॉस कर पाए. 1 kg ऑफ मसल एंड 1 kg ऑफ फैट दोनों एक ही वे करते हैं, लेकिन लुक्स अलग होता है. फैट थोड़ा लूज दिखता है, सॉफ्ट दिखता है, और मसल थोड़ा हार्ड दिखता है. और एक्चुअली क्या होता है, मसल इज वाइटल टू आवर सक्सेस फॉर लूजिंग फैट. ओके. मसल में एक पावर हाउस होता है जिसको मैंने इससे पहले मैं बोल रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया. तो मसल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रहते हैं. तो
what is mitochondria? Mitochondria are cellular power plant that are responsible for the production of energy. Okay. Actually ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्या करते हैं, ये फैट को मेटाबोलाइज करते हैं. Okay. और इसमें क्या होता है कि there positive correlation between the amount of muscle you have and the number of mitochondria you have. Actually जितना मसल हम लोग के पास होगा उतना माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग के पास होगा. तो क्या होता है, जितना माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग के पास होगा वो उसको उतना फैट चाहिए होगा अपना एनर्जी लेवल को प्रॉपर रखने के लिए, क्योंकि मसल एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर वेरी एक्टिव टिश्यूज. Okay. तो अगर हम लोग रेस में भी हैं तब भी इनको अपना काम जारी रखना है, तो इसके लिए इनको फैट चाहिए होगा. तो वो फैट, वो जो भी शरीर में फैट रहता है वो धीरे धीरे इसको एक्चुअली टोटल मेटाबोलाइज कर देते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग कैसे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए हाई परफॉर्मिंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, HIIT और वेट ट्रेनिंग. Right. तो क्या होता है, अगर हम लोग वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल पीपल है, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो इसके लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, हम लोग का एनर्जी लेवल और माइटोकॉन्ड्रिया लेवल सेम ही है. आज जब हम लोग वर्कआउट करना शुरू करते हैं तब क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है नंबर बढ़ने लगता है. कैसे? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो चाहिए वो आज नहीं बढ़ेगा. वो वर्कआउट जब आज की है, कल जाकर फिर हमें एनर्जी चाहिए, तो ये शरीर अपने से माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा वो एनर्जी सप्लाई करने के लिए. तो क्या होगा, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो बढ़ता ही रहेगा. Okay. तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम लोग बर्न कर रहे हैं, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया उसमें अपना जो भी है अपना नंबर इंक्रीज करके ये फैट को मेटाबोलाइज करके वो एनर्जी सप्लाई करता रहेगा. Okay. And that means while we are sleeping, we are losing weight, losing fat. Right. So this is another reason to work out. And इसमें जो आपने अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, that breaks another myth जो काफी लोगों को है कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए या वेट ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए, you should do more of cardio. तो what you said कि for burning the fat आपको वेट ट्रेनिंग करने से ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स आते हैं. Right. Great, Sujay. So that was a good interactive session और काफी insights आपने share की अपने experience से. So we wish you all the best for your future, and we will keep connecting with you for more insights on aspects related to health and fitness. Thank you. Thank you, sir. Take care. Thank you. Bye bye. Okay.